I am going to teach about the subject accountancy, class 12, topic treatment of goodwill and its practical question. The practical question is based on the topic of treatment of goodwill. This question has been taken from the book of Sahit Bhavan publication, and I am going to solve the question number 12. And I have already discussed about the concept and general entries relating to the treatment of goodwill, accounting treatment of goodwill. Question 12 is A and B are partner having profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1:4 shares in profit. C bring 30,000 as capital and 1,000 as goodwill. New profit sharing ratio of all the partners shall be 3 ratio 3 ratio 2. Pass necessary journal entries. In this question, we have to make a journal entry relating to this concept. The first is first in this question, the old profit sharing ratio is given 3:2, and the new profit sharing ratio after the admitted partner C, that is a 3:2, and C bring a capital rupees 30,000 and goodwill 10,000. We know that the any partner uh, when any partner admitted into partnership firm, and if he bring any amount goodwill in cash, so this goodwill amount is called premium, and premium are distributed to the old partners, that is A and B, in the sacrificing ratio. On the basis of sacrificing ratio, so cash account, first general entry is cash account to cash account. The cash bring by the partner C total 40,000, 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. So 30,000 cash account is debited to premium account. Premium is a 10,000 that the C bring as a goodwill, and the C and the capital account, and to C capital account 30,000. So cash account debited to premium account and to C capital account 30,000, and the premium account second journal entry is the premium. If the goodwill is given in cash, so they are distributed to the old partner as the sacrificing ratio. The premium account debited 10,000, and to A capital account to B capital account 9,000 into 10,000. So before these entries, we have to solve the necessary calculation of sacrificing ratio of A and B. The sacrificing ratio of A means old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio. The new profit sharing ratio is given 3 ratio 2. So we can easily find out the sacrificing ratio of A 9:40, and sacrificing ratio of B, that is a 2 upon 5 minus 3 upon 8. So we can easily get 1 upon 40. The sacrificing ratio of A and B 9 and 9:1. So these premium account are distributed amongst the old partners A and B, that is A and B, in the sacrificing ratio 4:9:1. The 10,000 and 9 ratio, that is a 9,000 going to the A capital account and 1,000 going to the B capital account. So we can narrate it being premium credited to A and B's capital account
in SR sacrificing ratio, that is a 9:1. This is the solution of question is 12. Then all these question 13 and 14 are totally based on this concept, and you can easily solve this question. If you have doubt in the 13 or 14 question, you can ask me. Then let's start another question, that is a 17 question. G and H are partner sharing ratio. G and H partner sharing profit and loss in the ratio 3:2. They decide to admit D as a new partner and to share future profit and loss equally. D bring in rupees 50,000 as his capital. Goodwill of the firm is valued at 60,000. Pass necessary journal entry. Condition first is when the no goodwill appear in the book, and second is when goodwill appear at rupees 50,000 in the book. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या सॉल्व करना है कि दो पार्टनर है जी और एच, जो कि जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। फिर उन्होंने एक डी पार्टनर को एडमिट किया और फ्यूचर में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया उनकी इक्वली है, मतलब 1:1:1। फिर डी जो है अपने साथ क्या लाता है 50,000 एज इज कैपिटल लेकर आ रहा है। और फिर अगर फर्म की गुडविल देखा जा रहा है, फर्म की गुडविल कितनी है 60,000। तो अब हमको जर्नल एंट्री निकालनी है व्हेन द नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। हम लोग ने इसकी जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस किया था कि जब हमारी गुडविल जो है हमारी बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में नहीं अपीयर होगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका क्या जर्नल एंट्री होगी। उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। और जब मतलब व्हेन गुडविल अपीयर एट ₹50,000 इन बुक, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी। जो गुडविल अगर हमारे बैलेंस शीट में शो हो रही है तो उसकी जर्नल एंट्री की जाती है। अगर गुडविल जो है हमारी बैलेंस शीट में नहीं शो होती है एसेट साइड में, तो उसको हम लोग उसकी जर्नल एंट्रीज नहीं होती। तो कंडीशन फर्स्ट व्हेन द नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। तो हम लोग इस क्वेश्चन में जानते हैं कि डी जो पार्टनर है वो कितना रुपया कैश कैपिटल लेकर के आया 50,000। तो कैश अकाउंट टू डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट, तो उसको हम लोग ने इसकी एंट्री 50,000 लिख दिया बीइंग कैश ब्रॉट इन कैपिटल। सेकेंड इसका क्या है डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जी कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे डी का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड किया गया है 20,000 और हम लोग ने अभी पढ़ा है कि डी जो है वो कैपिटल लेकर आता है 50,000 में का। और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो फर्म की गुडविल है वो 60,000 है। तो यहाँ पर अब जो है वो अमाउंट मतलब कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स को जाएगी जो 60,000 गुडविल। अगर गुडविल नहीं, ये क्वेश्चन ये अगर कहा जाता है कि अगर गुडविल न्यू पार्टनर नहीं लेकर के आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि और क्वेश्चन में ये दे दिया है कि गुडविल जो है वो फर्म की 60,000 है, तो उसके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि बताया गया था वो इक्वली होगा, तो 1:1:1। अब अगर हम इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जी और एच का निकालते हैं तो 4:1 आ रहा है। डी शेयर इन द प्रेजेंट गुडविल बुक में क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 60,000 जो है वो फर्म की गुडविल है और डी का उसमें कितना शेयर हो जाएगा 1:3, क्योंकि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, तो 1 लिखा इंटू तीनों को ऐड कर दिया तो 3। तो जी का यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि गुडविल कितना है और यही गुडविल जो है हमारे ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किस फॉर्म में किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसीलिए इस एंट्री में क्या दिया हुआ है 20,000 कहाँ से आया है, जो 60,000 का 1/3 करेंगे तो 20,000 आएगा और फिर इसको जी और एच के कैपिटल में 4:1 के रेशियो से
4:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो से इन लोगों को, पुराने जो ओल्ड पार्टनर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पे गुडविल की एंट्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके बुक ऑफ अकाउंट में गुडविल नहीं अपीयर हुआ। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन द गुडविल अपीयर एट ₹50,000 इन द बुक। यहाँ पे कह रहा है गुडविल जो है अगर हम बुक में मतलब बैलेंस शीट में देखते हैं अगर है 50,000 के उस पर, तो यहाँ पर उसकी जनरल एंट्रीज की जाएगी। कैसे? पहला तो सेम दो प्रोसेस वही होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फिर सेकंड है कि दिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड आर डेबिटेड एंड टू क्रेडिटेड द सी एंड एच कैपिटल अकाउंट। अब जो किस रेशियो से किया गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से 4:1। फिर थर्ड एंट्री है जो कि मेन एंट्री है इस पार्ट की, वो क्या है कि गुडविल अपीयर हो रहा है 50,000 इन द बुक। अब जब गुडविल, अगर कोई भी चीज़ कैश में आ रहा है तो वो हमारे ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दिया जाता है। तो जी मतलब अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कि बीइंग एग्जिस्टिंग, या इसका नरेशन पढ़ते, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक रिटन ऑफ बाय द G&H इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब गुडविल को जब हम उसके ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो किस रेशियो में होगा, हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जो है 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। और यहाँ पर जो 50,000 गुडविल आता है उसको डेबिटेड कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो 3:2 के फॉर्म में। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। You have any doubt in any part, in any interest, you can ask me. Okay.